Assalamu alaikum to all the participants and the viewers who are watching us live on our Rehan AI Teacher Institute Facebook official page. Myself, Mariam Zulfikar, trainee Mari, working as Vice Principal at Rehanpur Online Academy and facilitator at Rehan AI Teacher Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. I welcome all the participants in today's class. Today is Tuesday and the date is 5th August 2025. The time is 9 minutes past 9 UTC +5 according to Pakistan Standard Time. Thank you so very much for joining. Let's practice the validation video and then we'll proceed towards the task. Ji Naseemullah bhai. Trust your body. And when you're ready, softly close your beautiful eyes and begin to turn your awareness inwards, tuning in to breath and body, feeling how they feel as you're waking up this morning, alive, refreshed, ready and here for another day. What a gift. Using your imagination now, let yourself bring to mind the earth. Picturing earth however you feel called, whether you have a faraway bird's eye view or your imagination is showing you places up close. You can't get it wrong. Trust and allow whatever you experience throughout this meditation. As you focus on the earth, you become increasingly aware of all of the natural resources that are here for you. Water, air, food, the materials required for shelter. It's all here. It's all here. Invite yourself to relax into the comfort of knowing all your needs are taken care of. Even if at this moment there are still perceived unmet needs that are quite important, just for this moment, let those off the hook and tune in to all of the resources you already have. The way your body is supported right now, on whatever surface on which you are resting. The way you're able to tune in to this very practice. Let yourself begin to generate feelings of appreciation and gratitude. Feeling thankful for all that you have. And tune in now to your heart in the middle of your chest and a couple of inches inwards. In this energy center, you feel a welcoming, a feeling like open arms, welcoming in the highest, most loving good today, welcoming in joy, feeling appreciation for a day that has yet to unfold. And yet your heart feels already that it loves this precious day. Say out loud or in your mind, thank you. Thanking yourself for being here. Thanking the earth for your ability to be here. And thanking you simply for showing up for this.
Stay connected to this feeling of appreciation and eagerness for a beautiful day as you slowly begin to stretch your body however it feels called. And when you're ready, take your time as you open your gorgeous eyes back to the miraculous world all around you. Staying connected to this peaceful feeling as long as you wish throughout the rest of your day. Okay, participants, thank you so very much for practicing this meditation video. Ishad, Ara, Salman Bhai, Misiram, please turn on your camera. Misiram, अपना कैमरा एंगल थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, लिड को नीचे कर दे लैपटॉप के. इशाद, आरा, सलमान भाई कैमरा ऑन कर लिया अपना. जी इशाद, सलमान भाई कैमरा ऑन कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कौन सी मेडिटेशन थी जो विदाउट वॉइस आप कर रहे थे. सलेमान, सुलेमान भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको बार बार चांस नहीं दूंगी इस बात के लिए कि आप अपना कैमरा ऑफ रखें, और जब मैं बुला रही हूँ और आप उसके बाद भी जवाब नहीं दे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे. जो प्रॉब्लम फिक्स कर रहे हैं ना उसको 10 मिनट पहले ज्वाइन करके फिक्स किया करें ना, बजाय इसके कि आप क्लास के टाइम पे फिक्स करें. के पार्टिसिपेंट्स, कल के टास्क के बारे में जिसका जो चैलेंज है प्लीज उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, और फिर हम आज के टास्क के बारे में बात करते हैं. इसके साथ ही साथ आज एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, जो कि मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ. माशाल्लाह से हम सब बहुत पंक्चुअल हैं, और आपकी इतनी पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी को देखते देखते आज ये स्ट्रिक्टली करना पड़ा हमें. आइंदा से आपके जूम चैट में आपके अटेंडेंस का लिंक शेयर होगा, और वो विद इन 9:15 तक शेयर होगा. आफ्टर 9:15 आपके जूम चैट में आपको कोई लिंक नहीं मिलेगा. इसलिए जिसको भी अपनी अटेंडेंस अकॉर्डिंग टू द डेज मार्क करनी है, he or she has to join the class exactly at 8:55 p.m. आप सबको अपनी क्लास जो है 8:55 पे ज्वाइन करनी है, ताकि आप अपनी अटेंडेंस को प्रॉपरली मार्क कर सके. आज 5th अगस्त है. इसके बाद अगर किसी की भी एब्सेंट होती है तो उसको खुद देखना पड़ेगा कि वो कितना टाइम नहीं ज्वाइन करता है. थैंक यू सो वेरी मच. ओके, थैंक यू नसीमुल्ला भाई. नसीमुल्ला भाई ने अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए ताकि आप सबकी अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए. अब बात कर लेते हैं हम आज के टास्क की. जी सलमान भाई, आप ना माइक खोल दें, अपने सर से हाथ हटा लें. बहुत मुश्किल लग रहा है क्लास को ज्वाइन करना, तो कुछ और कर लेते हैं. Somebody leave the class. जी सलमान भाई. जी मैम, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है. अब मुझे बताइए कौन सी मेडिटेशन है जो कि विदाउट वॉइस आप कर रहे थे. जब तक आपकी अपनी ऑडियो लीव होगा तब आप कैसे सुनेंगे कि आपको मेडिटेशन में कौन सी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, और कैमरा क्यों बंद होता है आपका मेडिटेशन में. मैम वो वीडियो का मसला है, आज भी मेरे पता नहीं नेटवर्क का इशू हो रहा है, बार बार वीडियो स्टक हो रही थी मेडिटेशन के वक्त भी. वो 2-3 दिन से नेट का भी प्रॉब्लम है. दूसरा आज मैं इंटरव्यू भी कर रहा था तो उसके टाइम भी मेरा ऑडियो का मसला हो गया था, वीडियो का मसला हो गया था. इसलिए वो मेडिटेशन के वक्त खुद ब खुद ही वीडियो बंद हो गई थी. मुझे समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक स्क्रीन हो गई थी एकदम. अब ये कल तक आप इसको फिक्स कर लें, दोबारा नहीं है. ठीक है, ठीक है, ठीक बहुत है. शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. मैं सदफ बाबर अपने कैमरा ऑन कर दें. ओके पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक देयर इज नो चैलेंज, नथिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग द यस्टरडेज टास्क. आपके कल के टास्क के बारे में, कल की चीजों के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आकिब भाई, आपकी सिटिंग पोस्चर अप्रोप्रिएट नहीं है, टेबल और चेयर पे बैठ के क्लास नहीं है. आपको लेटना या टेक लगा के क्लास लेने की परमिशन नहीं है. आप सारे देख रहे हैं ना, सब टेबल और चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आपको भी अपने लिए टेबल और चेयर अरेंज करना है, उस पर बैठ के आप क्लास लें. ठीक है, बहुत शुक्रिया.
ओके पार्टिसिपेंट्स, आई शेयर द टास्क इन द ग्रुप। और हमारे पास सबसे पहला टास्क जो है, मैं मोबाइल के कैमरा ठीक नहीं है, तो मिस आप लैपटॉप से ज्वाइन करें ना। आपको मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि आप अपने लैपटॉप से ज्वाइन किया करें। सेलफोन से मैं अलाउ नहीं करूंगी। अब 1 महीना हो गया हमारी क्लासेस को, अभी तक आपका लैपटॉप वाला मसला हल नहीं हो पाया। साइमा, अरे ओके। अस्सलाम वालेकुम मिस साइमा सद्दा, कैन यू हियर मी? प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो, हेलो मिस साइमा, कैन यू हियर मी? Okay. Okay. Dear participants, I share the task in the group. So let's complete the first coding task. Then we'll go for the TED talk. So as I shared the task in the group, today we have to complete our stopwatch app. आज हमने जो बनानी है वो हमारी स्टॉप वॉच की ऐप है, जो कि pro.ai से हम बनाएंगे। तो हम सब पहले उसको बना लेते हैं। आसिफ भाई, आपकी लाइट ठीक है? आपके फेस पे एक अजीब सी रिफ्लेक्शन आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर लाइट के मसले। ओके पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने व्हाट्सएप के जो टास्क शेयर हो चुके हैं और आप उसको देखना चाह रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। और अगर मुझे प्रॉम्प्ट शेयर करना है तो मैं आपके साथ जूम चैट में प्रॉम्प्ट शेयर कर देती हूँ, दैट विल गो फॉर। नसीमुल्लाह भाई, जूम चैट में प्रॉम्प्ट शेयर कीजिएगा आज के टास्क का, कोडिंग का। जी ठीक, मैं करने लगा अभी कर। And 22। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वाले, जी फरूक भाई, तो हम आई बिल्कुल थिंक ये ठीक है। आप टास्क हैं? जो है वो जी जी, स्टॉप वॉच ऐप बनानी है। जी जी, आज स्टॉप वॉच ऐप बनानी है।
इसके साथ ही साथ आपके आने से पहले कुछ थोड़ी देर पहले एक अनाउंसमेंट हुई है, और वो ये है कि आपको अपनी क्लास को एग्जैक्टली 8:55 PM पे ज्वाइन करना है, सो दैट योर ओ अटेंडेंस विल ओके बी शेयर्ड इन द ग्रुप एट 9:55 15 शार्प, और उसके बाद फिर दोबारा नहीं होगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ये बड़ी अच्छा मिस इरम, अगर आपका प्री प्लान खत्म हो जाता है ना, तो आप मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट अपने लिए ना 2 से 3 अपनी डिफरेंट ईमेल्स बना के रखें, ठीक है। मतलब आपने अगर एक अपनी ऑफिशियल नेम से बनाई हुई है, जो कि आपका आइडेंटिटी कार्ड पे नेम है ना, इरम मुश्ताक के नाम से, एक आप बना लें इरम एजुकेशन वाली के नाम से, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि अगर आप एआई को यूज कर रहे हैं ना, हम ये तो कहते ही नहीं है कि आप पेड वर्जन खरीदे, हम तो हमेशा कहते हैं फ्री वर्जन में आप ज्यादा ज्यादा काम कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसका बैकअप ये है कि आप जब एक बार एक फ्री वर्जन को यूज कर ले और उसकी लिमिट पूरी हो जाए, तो जब आपने दोबारा उसको यूज करना है, तो आप दूसरे ईमेल से उसको लॉग इन करके दोबारा अपने प्रॉम्प्ट देकर उसको कंप्लीट कर सके। तो आप ये करें कि आप एक और ईमेल क्रिएट कर लें जीमेल अकाउंट, और उसको याद रखें, ठीक है, उसको भी कहीं नोट डाउन कर लें, और बैकएंड पे प्लान बी के तौर पे आप उसको यूज कर लिया करें। फिर जब आपके अगर 10 प्रॉम्प्ट्स जो खत्म हो जाते हैं क्लाउड के साथ, तो दूसरी ईमेल पे दोबारा आपको 10 प्रॉम्प्ट मिल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर उस पर भी खत्म हो जाए तो तीसरी ईमेल बना है उस पर भी यूज करें, तो एटलीस्ट 2 बैकअप में जरूर रखें, ताकि आपकी, और फिर ऐसा भी होता है समटाइम कि आपके जो जीमेल है उसके अंदर इतनी मेल्स आ जाती हैं जो कि जंक मेल्स होते हैं, हम तो साफ नहीं करते, क्लीन नहीं करते ना, उनके डाटा मैनेज नहीं करते, तो हमारी गूगल ड्राइव फिल हो जाती है। और जब ओवरफिल हो जाती है तो फिर आप ना किसी को मेल सेंड कर सकते हैं और ना कोई मेल रिसीव कर सकते हैं उस मेल आईडी में जिसकी ड्राइव फुल हुई हुई है, ठीक है। ये भी हमें थोड़ा ख्याल करते रहिए, और अपनी जितनी भी सोशल और प्रमोशन वाले 2 ब्लॉक्स बने हुए ना आपके, पार्टीशन है आपकी जीमेल के अंदर, उसको हमेशा डिलीट करते रहे। जी ईशान, आपको कुछ कहना है? मैम मैंने दूसरी एक और ईमेल डाल के ये वाला स्टॉप वॉच वाला वो बना तो लिया, तो वो बन गया, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा। तो बस ठीक है फिर, मैम इसमें पोस्ट डरने अब वाली कर क्या दूं? बात है? आप पिक और पोस्ट करो उसे, ओके मैम। that's it। जी, जी मैं सिर्फ आपने सजेशन दिए 2-3 मेल्स बनाने की, इसमें ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं कहीं इसको सेव कर सकूँ। और दूसरा ये कि मैंने जो कल का टास्क था ना क्लाउड एआई का, वो मैंने आज मुकम्मल किया, अपलोड कर दिया, तो मैं आज का इंशाल्लाह सुबह कर लूँगी। और तीसरा पैसा ये है कि मेरे सारे काम ठीक चल रहे हैं, जब मैं कैनवा पे जाती हूँ तो मैं थंबनेल बनाना चाह रही हूँ, और मेरे से जो है ना वो ना फेसबुक का पोस्टर बताता है, तो दूसरा भी जब मैं बनाती हूँ तो वो उसके ऊपर थंबनेल की मेरे ख्याल डायमेंशन वो नहीं है, वो बनता नहीं है। अब मुझे थोड़ा सा या तो कोई वीडियो सजेस्ट कर देंगे अभी, कि मैं अब अपना चैनल यूट्यूब का और अपना जो ये फेसबुक है इसकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी मुझे यूट्यूब की पता है, फेसबुक की नहीं पता। तो अगर मैं अपने इसी स्किल को आगे लेकर जाती हूँ तो मैं ये जो है ना मोनेटाइजेशन पॉलिसी फेसबुक की, ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, और थंबनेल जो है ना वो थोड़ा सा आज कैनवा आप खुद निकाल के ना थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें, तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो यू फेसबुक की आपकी है ना मोनेटाइजेशन, वो जब तक आपका फेसबुक का पेज नहीं होगा तब तक आपकी मोनेटाइजेशन नहीं होगी। आपका फेसबुक का पेज होना जरूरी है। मेरे पास फेसबुक के 3 पेज हैं, और एक पे जो है ना 1000 वो है पूरे 1K से ऊपर, और एक पे 700-800 है। मेरे पास 3 पेजेस भी हैं, तो अगर हमने मोनेटाइजेशन करना तो पेजेस से अर्न करना पड़ेगा, प्रोफाइल पे नहीं वार्निंग दे। मतलब आपको प्रोफाइल के साथ लिंक करना है, और उस पेज के ऊपर आपने अपनी जो है ना रीचिंग बढ़ानी होती है, ठीक है। और मुझे फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन है वो थोड़ी मुश्किल होती है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत मुश्किल है। जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम की है ना वो जल्दी मिल जाती है आपको मोनेटाइजेशन, तो उनकी आसान है और वो जल्दी है, क्योंकि जैसे यूट्यूब का वॉच टाइम आपको पूरा करना है, आपने कुछ सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं, और उसके साथ साथ आपको कंटेंट की एक लिमिट है कि आपने यहाँ तक अपनी वीडियोज वो अपलोड करनी है, तो वो अगर 3 पैरामीटर्स आपके फुलफिल हो जाते हैं तो आपको मिल जाता है। अब जो फेसबुक है इसके लिए थोड़ा सा ये
चीजें यही है सारी की सारी, लेकिन ये डबल है, मतलब ये जो आपको यूट्यूब पे दी गई है उनसे ज्यादा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि आप सेम कंटेंट जो आप अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पे शेयर कर रही है, सेम कंटेंट आपने अपने पेज पे शेयर करना है। तो आपकी जो रीचिंग आनी चाहिए प्रोफाइल पे वो आपके पेज से आनी चाहिए। इस तरह से वो आपको मोनेटाइजेशन देता है फेसबुक पे। और जहां तक रही बात आपके थंबनेल की, तो ये टास्क कंप्लीट हो गया, फिर मैं आपको थंबनेल के बारे में गाइड करती हूँ। जी मिस, मेरे बाप के सवाल है आपका। ये म्यूटेड मेरे। अनम्यूट योरसेल्फ मेरे। जी मेरे। वो मैम इंटरनेट का मसला हुआ है इसलिए वो जल्दी नहीं हो पा रहा। तो वो मैम मैं अच्छा जी बताइए। क्लाउड एआई ओपन किया है तो वो कह रहा है कि अंटिल 9 PM तक आप नहीं कर सकते मैसेज। अभी 9:30 हो गया पर वो फिर भी अलाउ नहीं कर रहा। आप थोड़ी देर और वेट करें और इसे रिफ्रेश करें, फिर आपको ये अलाउ कर देगा। ओके। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। Participants, write in the chat or show me thumbs up how many you have completed the coding task. कितने participants का coding task complete हो चुके हैं क्लास में, और जो कल करेंगे वो भी अभी क्लास में कंसीडर करेंगे कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया। मैम कल कल वाला पूछ रहे हैं। दोनों। कल वाला तो हमने बात कर ली कल की, आज हम आज की बात कर रहे हैं। वही क्लास में आज का हमने आज की बात करनी थी ना। जी। जी। ओके। ओके पार्टिसिपेंट्स, मिस सिद्रा का मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आज से उनकी अपनी क्लासेस शुरू हो गई हैं दूसरे बैच में, and she's saying she is missing you all, and that's a very good time she spent with all of you. Sulshan Munawwar, okay, that's good Miss Sulshan. Okay, जी मिस लाला आपका सवाल है। नो मैम, मुझे ये बताना था कि ये वाली जो वॉच है ना, स्टॉप वॉच, मैंने ये पहले अपलोड कर दिया बना के, तो मैं दोबारा बना लूं? नहीं ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी अपलोडेड है, बस आपने उसका गूगल शीट में अपना वो लिंक ऐड करना है। ठीक है मैम, मैं ना इसलिए गूगल शीट के लिए रुकी हुई हूँ कि मैं चाह रही थी थोड़े मेरे कॉल एनी और चैट जीपीटी भी हो जाए, और यूट्यूब का लिंक भी मेरा जरा ठीक हो जाए पहला कि आप एक जिस दो तरह पोस्ट चढ़ा लूं। ना, आपके अपने लिए मुश्किल बननी है। आप इतनी ज्यादा स्क्रोलिंग करके दोबारा जब अब हम कहेंगे ना कि अब हमारे पास सिर्फ, मैं ज्यादा से ज्यादा 3 दिन दूंगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास, आप अपने लिंक्स और सारी चीजें अपडेट करने की। अगर किसी रह गई है तो क्रॉस वेरीफाई करके अपनी बुक को ऑलरेडी 100% अपने टास्क को मेक श्योर कर ले। चले 3 दिन के बाद इंशाल्लाह। आपकी गूगल शीट्स लॉक हो रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ओके। अभी साथ साथ में अपना काम कर लेंगे ना, आसान हो जाता है। दूसरा ये ओके है कि जब मैम। हम 2 महीने के सारे टास्क ऊपर स्क्रॉल करके फिर ऐड करेंगे ना, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए ढूंढना कि मैंने किस डेट पे कौन सा काम किया है। चले इंशाल्लाह मैम, मैं करती हूँ कुछ इसके लिए। तो उसको साथ साथ लाइन अप रखें तो आपके लिए आसानी रहेगी। चले इंशाल्लाह मैम। ओके मिस लुबना का भी टास्क डन हो गया। नेट स्लो है, फेसबुक प्रोसीडिंग। अच्छा जी, आपका टास्क बन गया ना। आप आसिफ भाई, आपको सिर्फ अपलोडिंग करनी है ना। ओके जी जावेद भाई। मैम ये आज का जो टास्क दिया है कोडिंग भी दिया है ना, स्टॉप वॉच। हाँ जी, स्टॉप तो वॉच मैम का। मैम ये मतलब कौन सी वेबसाइट से आना है इसको, क्लाउड एआई से बनेगा? हाँ जी, क्लॉड एआई पे बने। अच्छा ठीक। फर्क भाई, आपका ऑडियो लीव है फर्क भाई। बच्चे का लैपटॉप खराब हो गया। प्लीज पार्टिसिपेंट्स, जिनको इंटरव्यू का टाइम मैं कह दूं वो कॉल कर लिया करें ताकि आपका इंटरव्यू हो जाए। आज दोनों पार्टिसिपेंट्स ने कहा, और एक का अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप खराब हो गया, दूसरे ने मुझे कॉल करके बताया नहीं कि आपका टाइम हो गया और आप अभी तक आई नहीं, और मुझे लिंक भी शेयर नहीं किया कि मैं लिंक ही शेयर कर दूं और मैं बता दूं कि आपका टाइम हो गया, आप आ जाए। तो प्लीज अगर किसी को इंटरव्यू लेना है तो टाइमली 1 से 15 मिनट पहले लिंक शेयर कर दें, और साथ ही 15 मिनट पहले कॉल कर दें कि मैं लिंक शेयर कर दिया, आप मेरे साथ इंटरव्यू कर लें। ओके, सुलेमान टास्क डन।
सुलेमान, आपने ड्रैगन से सुलेमान एआई वाला कर लिया है ना? जी मैम कर लिया, आपने उस दिन करवा तो दिया था सेटिंग में। मुझे फिर भूल गया, मुझे ये नहीं याद कि आप मेरी प्रोफाइल में एडिड हो कि नहीं हो, इसलिए क्योंकि मैम मैं हूँ, आज आपके मैं टास्क के मैं हूँ देख लूँ आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आया। मिस जवेरिया, मैं अभी भी हूँ। मैम। सुलेमान एआई वाला से मैं लिंक, तो अगर लिंक शेयर कर दूँ आज जूम पे। नहीं, लिंक्स मेरे पास आ गया अब आपके, अब तो मैं चेक कर लूंगी सबके प्रोफाइल और सबकी चीजें, इसीलिए चलो मैंने वो ठीक है, शीट बनाई है। बहुत ठीक है। शुक्रिया। ठीक हो गया। I'm sad to hear from it, Miss Javeria. So we pray for it कि आपका लैपटॉप ठीक हो जाए और आप जल्द से जल्द चीजों को रेगुलराइज कर लें। I hope you're- Okay, okay participants, I hope you guys completed your task. Okay, शान का भी हो गया। फारूक भाई आप हैं? फारूक भाई फिर ले जबरदस्त ईशान। जी ईशान, अभी मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ आज की टेड टॉक का। पार्टिसिपेंट्स लेट्स वॉच द टेड टॉक। और आज की टेड टॉक बहुत ही अच्छी है, जो कि मेरे जैसे लोग हैं जो हमेशा लगता है कि थोड़े दिनों के बाद डीमोटिवेटेड हो रहते हैं, उन सब के लिए। द पजल ऑफ मोटिवेशन बाय डैन पिंक। सो लेट्स वॉच दिस टेड टॉक एंड देन विल शेयर द रिव्यूज अबाउट इट। जी शाल, यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन। आज आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है एंड देयर यू गो, दिस इज द लिंक ऑफ द टेड ओके टॉक। मैम, मैं होम शेयर चैट करती में हूँ। देखिए आपको एक लिंक शेयर होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और आपका जो है वो यूट्यूब खुल जाएगा और उसके बाद आप स्क्रीन शेयर कीजिए। मैम यूट्यूब ओपन हो गया है। एक मिनट। आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके, मैम हो रही है स्क्रीन शेयर? जी जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको अब स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर दें, लार्ज कर दें, पैच कर। लेकिन आपने साउंड शेयर नहीं किया हुआ। विशाल, इसको एक मिनट स्टॉप करें और ऊपर जो ऐसे जूम की स्ट्रिप आ रही है ना ब्लैक कलर की, या तो ऊपर होती है या वो नीचे होती है, ठीक है? उसमें मोर का ऑप्शन है, राइट साइड पे दिखेगा, बिल्कुल राइट साइड पे मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें तो सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगा शेयर कंप्यूटर साउंड। उस पर क्लिक करके मोनो या स्टीरियो को क्लिक कर दें, तो दोनों में से जो भी करेंगे इसका साउंड शेयर हो जाएगा। little over 20 years ago, I did something that I regret, something that I'm not particularly proud of, something that in many ways I wish no one would ever know, but that here I feel kind of obliged to reveal. In the late 1980s, in a moment of youthful indiscretion, I went to law school. Now, in America, law is a professional degree. You get your university degree, then you go on to law school. And when I got to law school, I didn't do very well. To put it mildly, I didn't do very well. I, in fact, graduated in the part of my law school class that made the top 90% possible. Don't skip the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, we can make this process a lot less stressful for you and your wallet. Simply sign up on our website, complete your test in 1 hour, and in 2 days, you'll receive your results. All without having to leave your home. Sign up today and start practicing with our free tests. Don't skip. Thank you. I never practiced law a day
in my life. I pretty much wasn't allowed to. But today, against my better judgment, against the advice of my own wife, I want to try to dust off some of those legal skills, what's left of those legal skills. I don't want to tell you a story. I want to make a case. I want to make a hard-headed, evidence-based, dare I say lawyerly case for rethinking how we run our businesses. So, ladies and gentlemen of the jury, take a look at this. This is called the candle problem. Some of you might have seen this before. It was created in 1945 by a psychologist named Carl Duncker. Carl Duncker created this experiment that's used in a whole variety of experiments in behavioral science. And here's how it works. Suppose I'm the experimenter. I bring you into a room. I give you a candle, some thumbtacks, and some matches. And I say to you, your job is to attach the candle to the wall so the wax doesn't drip onto the table. Now, what would you do? Many people begin trying to thumbtack the candle to the wall. Doesn't work. Some people, and I saw somebody kind of make the motion over here, some people have a great idea where they light the match, melt the side of the candle, try to adhere it to the wall. It's an awesome idea, doesn't work. And eventually, after 5 or 10 minutes, most people figure out the solution, which you can see here. The key is to overcome what's called functional fixedness. You look at that box and you see it only as a receptacle for the tacks, but it can also have this other function as a platform for the candle. The candle problem. Now, I want to tell you about an experiment using the candle problem done by a scientist named Sam Glucksberg, who's now at Princeton University in the US. This shows the power of incentives. Here's what he did. He gathered his participants and he said, I'm going to time you how quickly you can solve this problem. To one group, he said, I'm going to time you to establish norms, averages, for how long it typically takes someone to solve this sort of problem. To the second group, he offered rewards. He said, if you're in the top 25% of the fastest times, you get $5. If you're the fastest of everyone we're testing here today, you get $20. Okay, now this is several years ago, adjusted for inflation. It's a decent sum of money for a few minutes of work. Okay, it's a nice motivator. Question, how much faster did this group solve the problem? Answer, it took them on average 3.5 minutes longer. 3.5 minutes longer. Now this makes no sense, right? I mean, I'm an American, I believe in free markets, that's not how it's supposed to work, right? If you want people to perform better, you reward them, right? Bonuses, commissions, their own reality show, incentivize them. That's how business works, but that's not happening here. You've got an incentive designed to sharpen thinking and accelerate creativity, and it does just the opposite. It dulls thinking and blocks creativity. And what's interesting about this experiment is that it's not an aberration. This has been replicated over and over and over again for nearly 40 years. These contingent motivators. If you do this, then you get that. Work in some circumstances, but for a lot of tasks, they actually either don't work or often they do harm. This is one of the most robust findings in social science and also one of the most ignored. I spent the last couple of years looking at the science of human motivation, particularly the dynamics of extrinsic motivators and intrinsic motivators. And I'm telling you, it's not even close. If you look at the science, there is a mismatch between what science knows and what business does. And what's alarming here is that our business operating system, think of the set of assumptions and protocols beneath our businesses, how we motivate people, how we apply our human resources. It's built entirely around these extrinsic motivators, around carrots and sticks. That's actually fine for many kinds of 20th century tasks. But for 21st century tasks, that mechanistic reward and punishment approach doesn't work, often doesn't work, and often does harm. Let me show you what I mean. So Glucksberg did another experiment similar to this, where he presented the problem in a slightly different way, like this up here. Okay? Attach the candle to the wall so the wax doesn't drip onto the table. Same deal. You were timing for norms, you were incentivizing. What happened this time? This time,
the incentivized group kicked the other group's butt. Why? Because when the tasks are out of the box, it's pretty easy, isn't it? If-then rewards work really well for those sorts of tasks, where there's a simple set of rules and a clear destination to go to. Rewards, by their very nature, narrow our focus, concentrate the mind. That's why they work in so many cases. And so for tasks like this, a narrowed focus where you just see the goal right there, zoom straight ahead to it, they work really well. But for the real candle problem, you don't want to be looking like this. The solution's not over here. The solution's on the periphery. You want to be looking around. That reward actually narrows our focus and restricts our possibility. Let me tell you why this is so important. In Western Europe, in many parts of Asia, in North America, in Australia, white-collar workers are doing less of this kind of work and more of this kind of work. That routine, rule-based, left-brain work, certain kinds of accounting, certain kinds of financial analysis, certain kinds of computer programming, has become fairly easy to outsource, fairly easy to automate. Software can do it faster. Low-cost providers around the world can do it cheaper. So what really matters are the more right-brain, creative, conceptual kinds of abilities. Think about your own work. Think about your own work. Are the problems that you face, or even the problems we've been talking about here, are those kinds of problems, do they have a clear set of rules and a single solution? No. The rules are mystifying. The solution, if it exists at all, is surprising and non-obvious. Everybody in this room is dealing with their own version of the candle problem. And for candle problems of any kind, in any field, those if-then rewards, the things around which we've built so many of our businesses, don't work. Now, I mean, it makes me crazy. And this is not, here's the thing, this is not a feeling. Okay, I'm a lawyer, I don't believe in feelings. This is not a philosophy. I'm an American, I don't believe in philosophy. This is a fact, or as we say in my hometown of Washington, D.C., a true fact. Let me give you an example of what I mean. Let me marshal the evidence here, because I'm not telling you a story, I'm making a case, ladies and gentlemen of the jury. Some evidence. Dan Ariely, one of the great economists of our time, he and 3 colleagues did a study of some MIT students. They gave these MIT students a bunch of games that involved creativity and motor skills and concentration. And they offered them for performance 3 levels of rewards. Small reward, medium reward, large reward. Okay? Do really well, you get the large reward, on down. What happened? As long as the task involved only mechanical skill, bonuses worked as they would be expected. The higher the pay, the better the performance. Okay? But once the task called for even rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer performance. Then they said, okay, let's see if there's any cultural bias here. Let's go to Madurai, India and test this. Reward standard of living is lower. In Madurai, a reward that's modest by North American standards is more meaningful there. Same deal. A bunch of games, 3 levels of rewards. What happens? People offered the medium level of rewards, did no better than people offered the small rewards. But this time, people offered the highest rewards. They did worst of all. Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice-generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. Click on skip. This ad will be skipped for everyone. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks.
I start by brain dumping everything I need to get done in a list. In 8 of the 9 tasks we examined across 3 experiments, higher incentives led to worse performance. Is this some kind of touchy-feely socialist conspiracy going on here? No, these are economists from MIT, from Carnegie Mellon, from the University of Chicago. And do you know who sponsored this research? The Federal Reserve Bank of the United States. That's the American experience. Let's go across the pond to the London School of Economics. LSE, London School of Economics, alma mater of 11 Nobel laureates in economics. Training ground for great economic thinkers like George Soros and Friedrich Hayek and Mick Jagger. Just last month, economists at LSE looked at 51 studies of pay-for-performance plans inside of companies. Here's what the economists there said. We find that financial incentives can result in a negative impact on overall performance. There's a mismatch between what science knows and what business does. And what worries me as we stand here in the rubble of the economic collapse is that too many organizations are making their decisions, their policies about talent and people, based on assumptions that are outdated, unexamined, and rooted more in folklore than in science. And if we really want to get out of this economic mess, and if we really want high performance on those definitional tasks of the 21st century, the solution is not to do more of the wrong things, to entice people with a sweeter carrot or threaten them with a sharper stick. We need a whole new approach. The good news about all this is that the scientists who've been studying motivation have given us this new approach. It's an approach built much more around intrinsic motivation, around the desire to do things because they matter, because we like it, because they're interesting, because they're part of something important. And to my mind, that new operating system for our businesses revolves around 3 elements: autonomy, mastery, and purpose. Autonomy, the urge to direct our own lives. Mastery, the desire to get better and better at something that matters. And purpose, the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves. These are the building blocks of an entirely new operating system for our businesses. I want to talk today only about autonomy. In 20th century, we came up with this idea of management. Management did not emanate from nature. Okay, management is it's not a tree, it's a television set. Okay, somebody invented it, and it doesn't mean it's going to work forever. Management is great. Traditional notions of management are great if you want compliance, but if you want engagement, self-direction works better. Let me give you some examples of some kind of radical notions of self-direction. And what this means, you don't see a lot of it, but you see the first stirrings of something really interesting going on. Because what it means is, it means paying people adequately and fairly, absolutely. Getting the issue of money off the table, and then giving people lots of autonomy. Let me give you some examples. How many of you have heard of the company Atlassian? Okay, looks like less than half. Atlassian is an Australian software company, and they do something incredibly cool. A few times a year, they tell their engineers, go for the next 24 hours and work on anything you want. As long as it's not part of your regular job, work on anything you want. So the engineers use this time to come up with a cool patch of code, to come up with an elegant hack. Then they present all of these stuff that they've developed to their teammates, to the rest of the company, in this wild and woolly all-hands meeting at the end of the day. And then, being Australians, everybody has a beer. They call them FedEx days. Why? Because you have to deliver something overnight. It's not bad. It's a huge trademark violation, but it's pretty clever. That one day of intense autonomy has produced a whole array of software fixes that might never have existed. And it's worked so well that Atlassian has taken it to the next level with 20% time, done famously at Google, where engineers can spend 20% of their time working on anything they want. They have autonomy over their time, their task, their team, their technique. Okay, radical amounts of autonomy. And at Google, as many of you know, about half of the new products in a typical year are birthed during that 20% time. Things like Gmail, Orkut, Google News. Let me give you an even more radical example of it. Something called the results-only work environment, the ROWE.
created by 2 American consultants in place at about a dozen companies around North America. In a row, people don't have schedules. They show up when they want. They don't have to be in the office at a certain time or any time. They just have to get their work done. How they do it, when they do it, where they do it is totally up to them. Meetings in these kinds of environments are optional. What happens? Almost across the board. Productivity goes up, worker engagement goes up, worker satisfaction goes up, turnover goes down. Autonomy, mastery, and purpose. These are the building blocks of a new way of doing things. Now, some of you might look at this and say, that sounds nice, but it's utopian. And I say, nope. I have proof. In the mid-1990s, Microsoft started an encyclopedia called Encarta. They had deployed all the right incentives. All the right incentives. They paid professionals to write and edit thousands of articles. Well-compensated managers oversaw the whole thing to make sure it came in on budget and on time. A few years later, another encyclopedia got started. Different model, right? Do it for fun. No one gets paid a cent or a euro or a yen. Do it because you like to do it. Now, if you had, just 10 years ago, if you had gone to an economist anywhere and said, hey, I got these 2 different models for creating an encyclopedia. If they went head-to-head, who would win? 10 years ago, you could not have found a single sober economist anywhere on planet Earth who would have predicted the Wikipedia model. This is the titanic battle between these 2 approaches. This is the Ali Frazier of motivation, right? This is the thriller in Manila, all right? Intrinsic motivators versus extrinsic motivators. Autonomy, mastery, and purpose versus carrots and sticks. And who wins? Intrinsic motivation, autonomy, mastery, and purpose in a knockout. Let me wrap up. There's a mismatch between what science knows and what business does. And here's what science knows. 1, those 20th century rewards, those motivators we think are the natural part of business, do work, but only in a surprisingly narrow band of circumstances. 2, those if-then rewards often destroy creativity. 3, the secret to high performance isn't rewards and punishments, but that unseen intrinsic drive, the drive to do things for their own sake, the drive to do things because they matter. And here's the best part. Here's the best part. We already know this. The science confirms what we know in our hearts. So, if we repair this mismatch between what science knows and what business does, if we bring our motivation, notions of motivation into the 21st century, if we get past this lazy, dangerous ideology of carrots and sticks, we can strengthen our businesses, we can solve a lot of those candle problems, and maybe, we can change the world. I rest my case. Yes, you shall now click on the red button. Thank you so very much. Okay, participants, we watched today's talk. So, anyone who wants to share this review? Okay, Ahmed Mustafa ji, Ahmed bhai. वेल ये टेड टॉक बहुत रिलेट करता है हमारे मुल्क से लाइक फ्रीडम नहीं है लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है काम तो है ये कभी कभार तो छोटी जगह पे कर जाता है कि लोग को आप लालच दे दें पैसे का तो वो काम कर लेते हैं आपका मगर ऑन अ वाइड स्केल ये नहीं होता लाइक बहुत सारी मैं आपको डॉक्टर की एग्जांपल दूंगा कि उनको इवन सर्जरी करने की भी फुली फ्रीडम नहीं होती तो वो स्पेसिफिक चीज़ों से कर सकते हैं तो इस तरह काम होता नहीं है और परफेक्ट नहीं होता एटलीस्ट तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे तो दें उनको मगर आप फ्रीडम बहुत ज़रूरी है किसी भी काम करने के लिए दैट्स द मेन पॉइंट Thank you so very much, Ahmed bhai. जी मिस्टर रबना. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अच्छा मैम मैंने स्टेड टॉक को ना मतलब 2 तरीके से देखा है। एक तो ये कि जो इन्होंने कहा है ना कि हम लोगों को मतलब मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती और मोटिवेशन अंदर से आती है, ठीक बात है। बट जब तक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो मोटिवेशन भी अंदर से नहीं आएगी। और इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स जब हम मोटिवेट करते हैं ना तो वहां पे हमें फायदा भी होता है। तो मैं थोड़ा सा ना इससे डिसएग्री भी करती हूँ क्योंकि हम लोगों को अगर तो हम लोग मतलब वो है ओन बॉस हैं, अगर हम अपने बॉस खुद हैं तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि यस मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आवर ओन साइड। लेकिन अगर हमारा बॉस कोई और है तो फिर हमें उससे मोटिवेशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव
वो चाहे गिफ्ट्स हों, वो चाहे अमाउंट की सूरत में हो, उनके मतलब जो भी का अच्छा काम करने पे उनको दिया जाता है। तो ये चीज काम करने की जो है ना वो हमें बूस्टर बढ़ाती है, ये बूस्टर का काम करती है। अगर हम स्टूडेंट्स की भी एग्जांपल लें, तो हम क्लास के किसी बच्चे को मॉनिटर बनाते हैं तो वो उसकी मोटिवेशन होती है, बाकी क्लास उसके टारगेट को अचीव करने के लिए वहां तक पहुंचती है। तो मैं थोड़ा सा इनकी स्टेट डॉग से डिसएग्री भी करती हूँ। लेकिन अगर हम अपने बॉस खुद हैं और हम कोई खुद अपनी कंपनी ऑन कर रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली मोटिवेशन हमारे अंदर से आएगी। तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंट दो सिनेरियोज हैं, इनको हम एक जगह पे मिक्स नहीं कर सकते। तो ये मेरा पॉइंट है। इसीलिए तो उन्होंने मोटिवेशन को दो तरह से इंडिकेट किया ना, लाइक उनको डिवाइड कर दिया कि एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है आपकी और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो जी इंट्रिंसिक है वो तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन है ना, और हम्म। दूसरी जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर जी। मिस गुलशान, यू रेज योर हैंड फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। पहले नंबर पे तो इन्होंने ये कहा कि जो एक बड़ा की पॉइंट है इनका, उन्होंने कहा कि हमारा जो साइंस और बिजनेस है उनके दरम्यान में एक मिसमैच चल रहा है। दूसरा जो मोटिवेशन, उन्होंने उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ये अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे ना, तो उसमें भी दो तरह की पर्सनालिटीज होती है, इंट्रोवर्जन होते हैं और एक्सट्रोवर्जन होते हैं। तो हर बंदे के लिए मोटिवेशन लेवल को बूस्ट करने के लिए पैसा जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों के लिए खुद मुख्तारी जरूरी होती है, कुछ लोगों के लिए ये जरूरी होता है कि उनको मास्टरी मिल जाए, उनको आप ऑल इन ऑल कर दें कि ये वाला जो है ना, ये प्रोजेक्ट जो है इसमें आपने ही करना है, जो करना है जिस तरह से करना है, वो उनके लिए मोटिवेशन होता है कि इसमें मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन जो है वो डिपेंड्स करती है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आपका माहौल कैसा है, ये दो चीजें जो है ना, ये दोनों मिलके आपका मोटिवेशन लेवल जो है ना, उसका उसका एक लेवल बनाती है कि आपने किस तरह से काम करना। और नो डाउट लर्निंग के लिए, लर्निंग प्रोसेस को आगे से आगे करने के लिए इंसान के अंदर मोटिवेशन के का जो एलिमेंट है वो तो हमेशा रहता है। भले आप बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, भले आप छोटी पोस्ट पे बैठे हो, इंसानी जिबिल्लत है कि इंसान को सराहना पसंद है, उसको सराहा जाए। भले उसको सेल्फ अप्रिसिएशन मिले, भले उसको सराउंडिंग से मिले, ये जरूरी है इंसान के लिए। ये मुझे ना नाम भूल गया, पता नहीं अरस्तू का था या किसने कहा था कि इंसान एक जो है समाजी हैवान है। तो इस समाज में रहते हुए, इस सोशल सिनेरियो में रहते हुए, हमें हमारा दिल करता है कि हमें सराहा जाए। हम अगर कोई काम करते हैं उसको ऑन किया जाए, और उसके लिए मोटिवेशन का लेवल जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और ये आगे डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा लेवल लेते हो। अगर आप एक्सट्रोवर्जन हो तो फिर आप सराउंडिंग में चीज़ें ढूंढोगे, आपका दिल करेगा कि आप बाकी लोग आपको देखें। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्जन हो तो फिर आप अपने हिसाब से देखोगे कि ये चीज़ जो ये मुझे ना खुशी देती है, ये काम करके मुझे इस तरह से ये अच्छा लगता है। तो मोटिवेशन ज़रूरी है इंसान के लर्निंग के लिए, भले वो एक्स्ट्रो हो, भले वो इंट्रो हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच जी। आके भाई, क्या सीखा आज के टेड टॉक से, क्या लगता है योर की टेकअवेज? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की जो टेडक्स वीडियो मैंने देखी है, स्पेशली जो मेरा नजरिया है वो ये है कि उन्होंने टोटल जो बात की है वो आपके स्ट्रेटजी सिनेरियो के ऊपर की है, एक मोटिवेशंस के ऊपर की है। मोटिवेट रखना खुद को या मोटिवेशन देना किसी और को, ये हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं, ये एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। जैसे कि बेसिकली देखा जाए तो आप लोग जैसे कि मिस मरियम डेली बेसिस पे हमें आती है, हमें मोटिवेट कर रही होती है कि आपने अपने टास्क पे परफॉर्म करना है, यू कैन बेटर योर सेल्फ, आप अपने आप को मजीद बेहतर कर सकते हैं, वो मजीद एग्जाम्पल्स दे रही होती है। तो वो एक किस्म का हमें हमारे अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं। कोई भी काम होते हैं जब हमें अप्रिशिएट किया जाता है उस लेवल के ऊपर, तो हम उसको परफॉर्म करने में उसको काम करने में अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक फर्ज करते हैं जी, ऑलरेडी मेरे पास एक छोटी सी चीज है, बेशक वो कोई कैश की शक्ल में है या वो किसी प्राइस की शक्ल में है, तो जब मुझे उस कैश की या प्राइस की लालच दी जाएगी तो मुझे उसको परफॉर्म करने के दो ऑप्शंस होंगे, या मैं उसको लूज छोड़ दूंगा
कि यार ये हो जाएगा, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है। जबकि मुझे एक अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाएगा, मुझे चैलेंजेस से निपटना सिखाया जाएगा, तो मैं उसको बेहतर परफॉर्म कर सकूंगा। स्टार्ट से लेके हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया। हमारे बड़े जो थे वो किसी और ही जहन के मालिक थे कि बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे तो वो हाथों से निकल जाएगा। कि जी ये वो अब बड़प्पन में आ जाएगा कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलां हूँ। और ये चीज हमें दबा गई है अक्सर। और आज के दौर में हम देखते हैं हमारे मेंटोर्स जो हैं, हमारे बड़े जो हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि बेटा यू कैन डू इट, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखें आपसे पहले इसने किया था, वो कामयाब हो गया है, आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो ये मोटिवेशन जो स्पेशली जो मेरा किरदार आज एक एज ए ट्रेनर मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, उनके लिए एक मेंटोर बन रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी उसके पीछे जो वजह है वो मोटिवेशन है जो मेरे मेंटोर्स ने मुझे दी है। तो आज की टेडक्स स्पेशली मोटिवेशंस के ऊपर थी, जो कि जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच आकिब भाई, थैंक यू सो वेरी मच। जी मिस राहत। अच्छा जी, आज की प्रोडक्ट्स वीडियो बहुत ही वैसे तो ज़बरदस्त थी। मोटिवेशन ज़ाहिर बात है हर किसी की डिफरेंट कैटेगरी होती है। अगर किसी के पास पैसे हैं, नाम ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है उसे तो उन चीज़ों से वो मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है जी, तो इसमें जो अहम निकात थे वो यही थे कि खुद मुख्तारी अगर दे दी जाए, ठीक है, उससे भी मोटिवेशन आ सकती है। महारत हासिल करना और मकसद का एहसास होना, ठीक है, उससे भी इंसान मोटिवेट होता है। अगर उसका मकसद है, जिस चीज़ को वो अचीव करना चाह रहा है ज़िंदगी में, उसकी तरफ भी उसका कोई भी फेवरेट अगर मतलब जिसको वो अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी कही गई बात उसके ऊपर असर कर रही होती है। ठीक है जी, और इसमें उन्होंने गूगल और दीगर कंपनीज के ऊपर भी मतलब बताया कि उन्होंने अपने माहौल मतलब ऐसा बनाया अपने काम करने वालों के लिए, खुद मुख्तारी दी। और ऐसे माहौल में लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं ना, उन्होंने देखे। तो मोटिवेशन सिर्फ वही वाली बात है, पैसों से नहीं आती। पैसे जो हैं वो अगर किसी इंसान की ज़रूरत है तो ज़ाहिर बात है उससे तो फ़ायदा है, तो वो ज़ाहिर बात है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। मकसद और आज़ादी से मोटिवेशन का ज़्यादा ताल्लुक है, और यह माहौल होना भी चाहिए। अ, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि अब उसे वो किस चीज़ से एप्रिसिएशन मिलती है, उसी तरह से वो फिर लेके चले उसको। मेरा तो यही वाला नज़रिया है इस। थैंक यू सो वेरी मच मिस राहत। जी नीरव, क्या मोटिवेशन है आपकी और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है? जो मैंने आप जितना अगले बंदे को मोटिवेट करोगे, अगले को उसको पावरमेंट दोगे, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा, इतना ही ज़्यादा उसके आगे बढ़ने की उतना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये कह रहा है तो मैं कर लूँगा। जैसे मैंने जब इंटरव्यू स्टार्ट किए थे देने, तो मैंने सबसे पहला इंटरव्यू मिस गुलशान दिया था, तो मैं इतनी घबराई हुई थी, मेरी आवाज़ें नहीं थी बाहर आ रही। मैम गुलशान ने कहा था घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथली होगा। अगर आपको कोई चीज़ डर लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूँ ना पूछूँ, मुझे बता दो, मैं नहीं पूछूँगी, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर आप बोलोगे वहीं से मैं रुक जाऊँगी। मैंने दिया, उन्होंने इतनी स्वीटली बात की, इतने काइंड वे से उन्होंने ट्रीट किया, तो मुझे इतना मज़ा आया उनके साथ। फिर उससे अगले जो मैंने दिए सारे इंटरव्यूज़, तो मैंने मतलब मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया। तो फिर मैं जो जो भी इंटरव्यू देती हूँ उससे पहले मुझे मैम गुलशान की बात याद आ जाती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आज तक कभी स्क्रीन के सामने नहीं आई। मैं हमेशा कैमरे के पीछे रहती हूँ, कैमरे के आगे मैं कभी नहीं आई। फैमिली फ़ोटो शूट हो जाए, कभी भी नहीं। इसके अलावा अगर आप अगले बंदे को परमिशन दो कि आप करो, कोशिश करो एक बार, तो वो कर लेता है। तो यही था कि मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को पनिशमेंट दो या प्राइज़ेज़ रखो तो ही वो काम करे। जबरदस्त, वेरी मिस गुलशान, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने क्लास के लिए बहुत सारी मोटिवेशन रखी और आपको आइंदा भी ये आपके काम है नीरव। थैंक यू सो वेरी मच। जी जावेद भाई, क्या सीखा आज के टेड टॉक से, क्या की टेकअवेज?
जी मैम, मैंने सीखा मैम। मैंने जो 2022 से मैं शाहिद भाई को फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं उनका जो डिसीजन था उस डिसीजन को मैंने कभी भी उसको ना चैलेंज नहीं किया, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं किया। उनके कोर्स को मैंने बाय नहीं किया। लेकिन जब मैंने रेहान सर को देखा पॉडकास्ट में 2025 में, तो मैंने झट एकदम मैंने लैपटॉप भी बाय कर लिया और मैं यहाँ तक पहुंच भी गया। हालांकि मुझे इसके नॉलेज नहीं है बहुत, मैं इसमें वीक हूँ। तो इसमें मैम क्या है कि मोटिवेशन हो का जो रोल है ना, वो पीछे से मिलना चाहिए इंसान को। क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिली शाहिद भाई से, तो मैं यहाँ तक पहुंचा। और फिर जब रेहान सर को मैंने देखा तो फिर मेरी जो है दुनिया ही पलट गई। उनको देखा तो मुझे बड़ा मजा आया, और इसकी वजह से मैं आपके बीच में हूँ। तो मोटिवेशन जो जो मैन जो अपने जो ऑनर होते हैं, जो सीनियर बंदे होते हैं, उनसे मिलना जरूरी होता है। अगर घर से मुझे मिला होता तो मैं इससे पहले ही इसमें ऐड हो गया होता, और आज कहीं से कहीं होता। चले कोई बात नहीं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट आए, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो हो सकता है यही प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा बूस्ट कर दे और आपके लिए और चीजें अच्छी हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच जावेद भाई। जी मैं सिर्फ जी सारी टाइट टॉक देखी, बड़ी अच्छी थी, बल्कि मुझे ये देख के लगने लगा कि सर रेहान जो है शायद इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो वो जो मैंने उनकी बात सुनी है ना कि भाई जो है ठीक है, वो रिवार्ड और पनिशमेंट से भी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन अगर उसने जो कहा है ना ऑटोनॉमी, पर्पस और सेल्फ के लिए अपने काम करना, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम फ्रीडम देते हैं तो बेहतर होता है। और फिर हम एक पर्पस दे देते हैं जिसको भी काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम ये कहते हैं ना कि आप अपने लिए कुछ करो, जैसे उन्होंने टाइम दिया विकिपीडिया को बनाने के लिए, सब ओपन करे, सब कुछ जो मर्जी करे, अपने लिए कुछ करो, आप कुछ ना कुछ बनाओ, तो उससे क्रिएटिविटी बहुत इन्हांस हो जाती है। और उस टाइम क्रिएटिविटी जब हमें किसी को आज़ादी देने के बाद जो है ना, हम ये कहते हैं कि आप अपने लिए कुछ बनाओ, देखो तुम क्या बनाते हो, जिससे आप खुद को भी फायदा और दूसरों को भी फायदा, तो उस टाइम क्रिएटिविटी बहुत बूस्ट कर जाती है। तो ये जो उसने असूल बताया है ना, तो ये सबसे बेस्ट और मॉडर्न अमेरिका का ये असूल है। मैं काफी अर्से से यही सबसे पूछती थी कि अमेरिका की तरक्की का राज क्या है, तो मुझे लगता है इसमें ना ये राज है। तो भाई ऐसे काम करना चाहिए, तो इससे जो है सबको बहुत फायदा है कि अपने लिए भी काम करो और फिर उससे दूसरों को भी फायदा है। तो इसमें हम 100% जो है ना विन विन पोजीशन हो जाती है दोनों तरफ। तो इससे क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है, ये अमेरिकन असूल है। तो मैं काफी सालों से ढूंढ रही थी, अब मिला है। शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच मिस इरम जी। इशाद क्या कहना चाहेंगे, आज क्या मैम आज मैं की चर्चा? यही कहूंगी कि आप जो काम दिल से करते हो ना, वो काम आपका बेहतर होता है। और जैसे इसने कहा, मीरब ने कहा कि जब इंटरव्यू दे रही थी पहले, तो सेम मेरे साथ भी हुआ। जब मैं भी इंटरव्यू दिया था, सबसे पहले मैंने मैम को ही दिया था, मिस गुलशान को। तब इन्होंने बहुत अच्छा। मोटिवेट किया था, और बाकी टीचर्स को भी दिया, उनके साथ भी ना। तो अब मुझे इंटरव्यू देते हुए मतलब डर नहीं आता, कॉन्फिडेंस से हो गया कि खैर है, कोई बात नहीं, इंटरव्यू जिस मर्जी टाइम देती हूँ। तो इन सब की मोटिवेशन की वजह से ना, आपको जितना मोटिवेशन मिलेगी ना, आप उतना आगे जा सकते हो, उतना आपके लिए बेहतर होगा। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू जी। मिस गुलशान आपका हैंड रेज है। जी मिस मरियम, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाह रही थी जी जी कि प्लीज। उन्होंने तो कह दिया ना कि मोटिवेशन जो है वो जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी जाती राय है कि इंसान के अंदर एक्सट्रो और इंट्रो दोनों ही मौजूद होते हैं। एक वक्त ऐसा होता है कि इंसान जो है वो इंट्रो की फेज में होता है, तो वहां पर रिवार्ड किसी और तरह का चाह रहा होता है, और बाज़ अगर कुछ सिनेरियो इस किस्म का बना होता है कि वहां पर आप एक्सट्रोवर्जन हो जाती हो, और वहां पर आपको रिवार्ड इंसेंटिव जो है वो आपको सराउंडिंग से चाहिए होता है। तो ये जरूरी नहीं है, और ये आप इसको 100% नहीं लिमिटाइज कर सकते कि एक बंदा जो है वो एक्सट्रोवर्जन है, एक बंदा जो है वो इंट्रोवर्जन है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि आप किस वक्त में हो, किस फेज में हो, किस सिचुएशन में हो, और क्या काम कर रहे हो। ये मेरी एक जाती राय है, या मेरे अपना एक मुशाहदा है कि इंसान जो है वो बदलता है। इंसान की जैसे पर्सनालिटी की तहें है ना, हर परत जो वो निकलती, जैसे अगर आप उस्ताद हो तब आपकी एक और तरह की तय है, आपकी शख्सियत की। जब आप घर में हो तो किसी और तरह की है। तो आप जिस सराउंडिंग में होते हो ना, वहां पर उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंसेंटिव चाहिए होता है। अगर आप घर में हो तो आपको अपने घर के अकॉर्डिंग इंसेंटिव चाहिए होता है। अगर आप किसी फील्ड में हो तो वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव चाहिए होता है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप किस सिचुएशन में मौजूद हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू जी। फारूक भाई
क्या सीखा आज के चैट टॉक से, क्या समझ में आया? जी जी। अच्छा, मेरा चूंकि इंटरनेट कनेक्शन का मसला है तो मैं वीडियो मैंने ऑफ की हुई है। अच्छा, जी ये जी दिस टॉक इज ऑल अबाउट टेड टॉक्स जो है थी, ये ऑल अबाउट मोटिवेशन, ठीक है ना। और इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझाया उन्होंने कि ये जो है उनके लिए मोटिवेशन लेवल। अच्छा, बीइंग ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, व्हाट आई सॉ मार्केट, सही है कि जब हमें हायरिंग करनी होती है स्पेशली फॉर द प्रोफेशन, ठीक है ना, तो और भी मैनेजमेंट के अंदर, सीनियर मैनेजमेंट में, तो व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली एनालाइज देयर परसेंट, ठीक है ना। और हम डिफरेंट मेथड, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, एमबीटीआई या और अदर इस तरह के टेस्टर्स हैं जिनके थ्रू ये हम देखते हैं कि उस बंदे की पर्सनैलिटी किस तरह की है। उसका एक पर्पस ये भी होता है कि हम ये देख लें कि वो, उसको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, और वो कितना जो है वो किस चीज से वो मोटिवेट होता है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर पोजीशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उससे हम मैच करते हैं कि हाँ ये पर्सनैलिटी इससे मैच होती है या नहीं होती है, तो फिर हम उसको हायर करते हैं या फिर नहीं हायर करते, फॉर एग्जाम्पल। इसी से जो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ है कि हम एक फीडबैक भी ले रहे होते हैं कि पर्टिकुलर एक पर्सन है वो क्या चीज़ उसको मोटिवेट करे, क्या चीज़ नहीं कर पा रही है, और अगर वो वाकई है तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं या और रिक्वायरमेंट्स हैं, या उनको इस तरह से इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो हमारे पास रिटेन भी हो और अपनी तो ये बात सही है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कोई भी गलत नहीं होता, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि वो जो पर्सनालिटी है वो किस वक्त किस मोटिवेट हो रही है, ये आइडेंटिफाई करने की प्रोफेशनल लाइफ। तो ये चीज़ है जो कंपनीज के अंदर और प्रोफेशनल लेवल पे जज की जाती सही, थैंक यू सो मच फॉर भाई। Ahmed and Musab, beta, you are on the wrong link. Please join the link from your class. You can check the badge 4, so you can get it. Okay, I got it from the batch 4. It's not. That was the link that shared for the session that was held at 5 p.m. Not right Oh, now. okay. Okay. Okay, thank you. Sorry. Join your class. Okay, participants. Yes, Miss Lala, you want to say something? क्या सीखा आज की TED Talk से, क्या समझ में आया please? जी मैम, Dan Pink challenges traditional reward based motivation system. He explained that for creative tasks, external reward like money can actually reduce performance. Instead, true motivation comes from autonomy, mastery, and purpose. His talk is a powerful call to rethink how we motivate people in school, workplace, and beyond. Thank you. Thank you so very much. Miss Gulshan, आपको कुछ कहना है? नहीं मिस, सॉरी, वो पहले के Okay, got it, got it. कोई मसला नहीं. Okay, सलमान भाई, आपका रिव्यू प्लीज. जी मैम, मैं ये रिव्यू दूंगा कि एक लॉयर होने की हैसियत से ये बातें करना बहुत मुश्किल वाला काम है। और ये भी मोटिवेशन होना, एक लॉयर और लॉयर ऐसा बोलना मेरे लिहाज से बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉयर्स को जितना सहना पड़ता है ना, मैंने एक सीरीज देखी है, वो उसमें इतना ही है। और वो लॉ उसने कहा है कि मैं, मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती लॉ स्कूल में पढ़ाया, तो फिर ऐसा, और उसके लिए बात, क्योंकि उसने अपने आप से मोटिवेशन हासिल की है। आप उठो, अपने चेहरे में देखो कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। आप अपने लिए प्लान्स बनाओ, आप खुद अपने लिए मोटिवेशन बन जाओ कि आप पहले कैसे थे, किसी से क्या मोटिवेशन लेनी। वो आते हैं स्पीकर कासम अली शाह, नहीं मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप वो मोटिवेशन ना लें, उनसे उनसे मोटिवेशन लें, लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आप हैं। क्योंकि कासम अली शाह मैंने खुद सुना है उनके अल्फाज से, मेरे सर ने मुझे बताया था कि कासम अली शाह 2 घंटे का कम से कम 2 या 3 लाख रुपया चार्ज करते हैं।
वो मोटिवेशन ये मेरे स्पीच। भाई, तो इट्स फिर ट्रू, ये रियलिटी जी, है जी। हाँ जी, 2 से 3 लाख रुपया चार्ज करते हैं, क्योंकि ना मेरे सर ने कहा था कि कासम अली शाह मेरे उस्ताद जरूर हैं, लेकिन ये वाला तरीका बस मुझे उनका ये पसंद नहीं है। बाकी वो उस्ताद और उनकी मोटिवेशन बहुत अच्छी है, और ये उनकी बातें बहुत अच्छी हैं वो। और इसके अलावा मैं इंग्लिश लोगों की देखता हूँ ना कोट्स वगैरह, जैसे कि एलॉन मस्क हमारे सबसे बड़ा हमारे लिए मोटिवेशन है। कहाँ पे उसके पास $10 $20 थे, और आज उसके पास मिलियन बिलियंस डॉलर्स हैं। उसने सिर्फ एक छोटा सा काम शुरू किया था, और वहां से काम मतलब अपने से उसने ना उसने गुलबर्ग को देखा, ना उसने किसी और को देखा मोटिव, उसने अपने आप से देखी। उसने बस अपने आईने में देखा, नहीं लॉन तू नहीं, तूने लॉन मुस्क बनना है। तूने लॉन नहीं रहना, तूने लॉन मुस्क बनना है। और आज वो स्पेस एक्स, नासा और पता नहीं कितने का मालिक है। इसी तरह फेसबुक की भी एक मूवी थी द सोशल नेटवर्क, वो भी बहुत मजे की मूवी थी। वो भी थी फेसबुक वाले के ऊपर, और वो नेटवर्क बॉय कि किस तरह उसके फ्रेंड ने उसे बिट्रे किया, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं अभी नहीं, और आज वो फेसबुक का मालिक है। अमेजोन वाले ने एक गराज से शुरू किया था, उसे क्या पता था कि वो इतने बिल्डिंग्स का मालिक बन जाएगा, अमेजोन पूरी कंपनी का मालिक बन जाएगा। वो इतने क्या नाम है, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि एंड्रयू टेट, आपको पता होगा एंड्रयू टेट का, क्योंकि मैं तो उसे अपना मतलब मानता हूँ कि वो बंदा सही है, क्योंकि पहले जेल में जाने से पहले उसने मनी कमाई थी, पता नहीं इन लीगल आई डोंट नो, लेकिन जेल के बाद आने से उसने जब से वो ब्रॉडकास्ट शुरू किया कि जिसके अंदर उसने कहा गिव अप ना करो कभी, नेवर गिव अप। वो हर मैं उसका कोई वीडियो या टिकटॉक या स्नैप उसकी वगैरह आती है, तो फिर मैं यही देखता हूँ, वो कहता है नेवर गिव अप। आपने मेरा ज्वाइन नहीं करना करो, लेकिन गिव अप ना करो कोई भी बिजनेस में अगर तुम करना चाहते हो। और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही फोर्स करता है कि मेरी ब्रॉडकास्ट में आओ। उसने तो यहाँ तक कि उसने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। दूसरी बात एक शाहिद अनवर की है, जो बेचारा अपने माँ बाप की कमाई से बाहर गया था, और मैंने उसकी वीडियो देखी थी, वो एक जब ब्रॉडकास्ट कर रहा था, उसने कहा था कि शायद कुछ बन के निकलना है, क्योंकि जो तेरे पीछे है ना, तेरे पीछे एक बहन बैठी है, माँ है, बाप है जिसको तूने संभालना है, और भाई भी है जिसको तूने संभालना है। ठीक है, यहाँ पे आया मौज मस्ती में नहीं, हार्ड वर्क, और उसने हार्ड वर्क करके आज उसने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है। बस मैं यही बिल्कुल। मतलब अपने आप से मोटिवेशन हासिल करो, दूसरों से क्या थैंक मोटिवेशन हासिल करना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो वेरी मच जी सलमान भाई। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के फ्यूचर एलोन मस्क आप ही होंगे, तो प्लीज अपने गैराज से शुरू कर दो काम, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ठीक है। मिस मैं जी मैं आसिफ इमरान भाई। सलमान से मेरे क्वेश्चन लिए करना चाहूंगी। इमरान खान बहुत ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है। वो जेल में बैठा हुआ है जैसा भी है, लेकिन इमरान खान मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि वो जेल में बस रहने के ठीक, बावजूद इतना ज्यादा ये वहां हम पे। यही तक रहने देते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल टॉक्स हम कर नहीं सकते। जी बिल्कुल साहब। मैंने सुलेमान से यही पूछना था कि इमरान खान, उसने पहले ही कह दिया कि इमरान खान उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि इतने लोगों को स्टडी किया, इतने लोगों को देखा, तो कुछ ना कुछ इंसान के अपने अंदर होता है जो उसके साथ मैच कर जाता है, मैच करता है तो इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और फिर इंसान उस पॉइंट पे या उन चीजों को और ज्यादा जो है वो खोल के देखता है। तो सुलेमान की मोटिवेशन इमरान खान के अलावा अपनी जाती जिंदगी की क्या है? वो तो एक बंदा है ना जिसने आपको इंस्पायर किया, उसको छोड़े ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम सलमान की जिंदगी को देखें कि इतने लोगों, इतने जबरदस्त लोगों को अगर आपने व्यू किया है, तो खुद अपने लिए क्या चुना? आपकी अपनी मोटिवेशन क्या है? अपनी जी जिंदगी सर, का गोल क्या है? माइक म्यूट है सुलेमान अब। मैं इसमें बस यही कहना चाहूंगा कि गोल मेरा यही है कि मैं अपने पेरेंट्स को रिटायर करूँ और इतना अनेबल हो जाऊं कि हर बंदे को जॉबलेस ना देखूं, क्योंकि मैं अक्सर गुजरता हूँ ना यहाँ से, मैं अक्सर गुजरता हूँ यहाँ से अपने रोड से, वो रोड से, और अक्सर वो आपको वो ग्रैंड ऑपरेशन टिकटॉक के ऊपर भी देखा होगा, इस तरह के बंदों की मैं हेल्प करना चाहता हूँ। और वो ग्रैंड ऑपरेशन वाला बंदा सही कर रहा है और लोगों को जिंदगियां दे रहा है, मदद कर रहा है, उस तरह का ऑपरेशन करके उन्हें मतलब जॉब्स देना चाहता हूँ कि बेशक मैं अपनी कंपनी खड़ी कर लूँ, ताकि उन लोगों को बाहर ना जाना पड़े, उनको जबरदस्त बाहर ना जबरदस्त। जाना पड़े। यही चलो बस। जी, थैंक यू सो वेरी मच सुलेमान भाई। जी आसिफ भाई।
जी मैडम, मैं अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाया, आसिफ भाई समझने का एक अच्छी पूरा। हेडफी ले ले या हेडफोन ले ले, हम इतना मुश्किल से सुनते हैं ना आपकी आवाज को, फिर समझते हैं। अब सही आ रही है आवाज़? हाँ जी, अब कुछ बेहतर है। इसमें मुझे एक लाइन जो है समझ में आई कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें पैसे नहीं बल्कि आज़ादी, महारत और मकसद चाहिए। बिल्कुल सही हो गया, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो वेरी मच आसिफ भाई, और दोबारा कोशिश कीजिएगा इसको समझने के लिए। अच्छा, जी जो जी थैंक यू। अभी स्ट्रगलर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, इट्स प्रीटी ओके कि इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, बहुत सारी वोकैबुलरी समझ में नहीं आती, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। तो नोटबुक एलएम एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, आप उसको सर्च कीजिएगा, वो गूगल जेमिनी की ही वेबसाइट है। आप उसको सर्च करेंगे तो उसके अंदर आप अपनी इस टेड टॉक का लिंक कॉपी करके उसको पेस्ट कर देंगे ना, तो आपको पूरी टेड टॉक जो है उसको ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में। सिमिलर मैनर में आप अपने टेड टॉक को दोबारा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अपनी उर्दू में बेहतर तरीके से इसको समझना चाहते हैं, कोशिश ये करें वैसे इंग्लिश में सुने। मतलब मैं यही प्रेफर करती हूँ कि उसको उर्दू में बाद में ट्रांसलेट करें, पहले एक बार इंग्लिश में सुन ले उसको। हम दौलत साहब एक चीज हमारे से शेयर कर देते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आपके दिमाग में जाएगा वही आपकी जुबान से अदा होगा। तो जो लैंग्वेज आप अपने कानों से सुनना शुरू करेंगे और आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा ना, अल्टीमेटली आपकी लैंग्वेज वैसी की वैसी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, शुरू में सब गलत बोलते हैं, उसमें परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको एक हफ्ते पहले बताया कि मैंने इतना बड़ा ईडीएम गलत बोल के, और जब मैं मीटिंग में जाके बैठी तो मुझे समझ में आया, ओहो मैं तो वो ईडीएम गलत बोल रही। मैंने कहा अब तो हो गया जो होना था, अब क्या कर सकते हैं। अब कोई एक्सप्लेनेशन मांगे या रील बना के डाले तो फिर मैं दोबारा उसको ठीक कर सकती हूँ, उसके बगैर तो नहीं होना वो ठीक है। अब तो चला गया। तो इसलिए जब तक आप गलत नहीं बोलोगे ना, तब तक सही नहीं बोलोगे। तो कुछ भी गलत करो, उसको इतनी करेज और हिम्मत के साथ करो कि कोई बात नहीं, हो गया, अब अगली बार मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। कोई सामने वाला अगर आपको करेक्ट कर दे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप को खुद एनालिसिस कर सकते हो, खुद रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि ये गलत हो गया, अब आइंदा मैं इसको गलत नहीं करना। और पहली बार का गलत किया हुआ हमेशा याद रहता है, और आप हर बार जब वो काम करते हो तो आपको हमेशा ऑटोमेटिकली वो सही होता है। तो जिनको अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश समझने में, तो क्लास के बाद जरूर कोशिश करें कि जेमिनी को ये लिंक दे दें और उसको कहो कि मेरे साथ इसके जो मेन की पॉइंट्स है वो शेयर कर दें। वो आपके साथ पूरी टेड टॉक शेयर कर देता है। जब वो शेयर कर देता है और फिर उसी को दोबारा प्रॉम्प्ट दे कि अब इसको मुझे उर्दू में समझा दो, मतलब अपनी एज से 10 साल कम करके उसको बताए, तो फिर वो आपके लिए बहुत आसान उर्दू में लिख के दे देगा, जिसको आप दोबारा से रीड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और आपको टेड टॉक पूरी प्रॉपर समझ आ जाएगी कि एक्चुअली स्पीकर किस टॉपिक पर क्यों बात कर रहा था और क्या बात कर रहा था। और फिर आप इसकी रिव्यूज बनाए तो उर्दू का रिव्यू तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। फिर इंग्लिश की रिव्यू को कोशिश करके थोड़ा सा जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ और थोड़ा जेमिनी चैट जीपीटी से हेल्प लेके और उसको इंग्लिश अपने रिव्यू को बेहतर करने की कोशिश करें। जब तक आप हेजिटेंट रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। जिस दिन आपने अपनी हेजिटेशन को खत्म किया और अपने आप के लिए खुद इंग्लिश लैंग्वेज को चुन लिया ना, तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल सकेंगे। ठीक है जी मिस गुलशान। मैं अपने साथियों से एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ सबसे कि हम जी खुद जी मुख्तारी तो हो गई, खुद मुख्तारी भी हो गई, मोटिवेशन के अंदर आ गई। मकसद को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये मेरा एक क्वेश्चन है। जी participants, anyone who wants to add something? Okay, जी मिस इरम। जी मिस गुलशन, मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना नजरिया, मकसद से हमें वो प्रॉब्लम है जो हमें सोसाइटी में नजर आ रही होती है और हमें उससे बड़ी प्रॉब्लम तकलीफ हो रही होती है और हमें ये लगता है कि ये ठीक नहीं है या हमें इसको फिक्स करना चाहिए। दूसरा ये भी है मकसद से कि भाई यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुद जो है वो पैशन रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और हम चाहते हैं कि भाई हम इस चीज़ को गेन करें, चाहे वो कोई ओहदा हो, चाहे वो कोई यानी कि बिजनेस हो, चाहे वो कोई इंसान हो, या चाहे वो हमारी अल्लाह से जो है वो लिंक हो। तो ये जो सब चीज़ें होती है, हमारा मकसद होता है। एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन कि भाई हम पहले सोसाइटी में देखें, लोगों को वो आसानी दें और खुद के लिए भी करें, और दूसरा ये कि हम कोई ऐसे पर्पसेस निकालें, किसी का मकसद बिजनेस क्रिएट करना, पैसे कमाना, कुछ भी हो सकता है। तो ये है जिससे हमें जो है वो खुशी मिले और हम जो है वो आसानी क्रिएट करें, ये मकसद होता है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया मिस इरम। जी जावेद भाई, आपके लिए क्या डेफिनेशन है मकसद की?
मैम हमारा तो मकसद एकदम साफ है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो सब रूरल एरिया है ना, तो वो सब 300-400 वाले हैं जितने भी। तो मैं चाहता हूँ कि उनमें से कम एक भी निकल जाए, दो निकल जाए। मैं तो शायद कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं अपने बच्चे जो है मेरे पीछे हैं ना, बच्चे जो 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 10 साल के लड़के हैं, 15 साल के लड़के हैं, वो मुझसे कहीं ज्यादा ज़हीन है मैम। लेकिन उन्हें जो है वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रही, वो चीजें नहीं मिल रही जो वो उस चीज को करके आगे निकल जाए। क्योंकि वो जो है वो उसी जाल में फंसे हुए हैं जो यहाँ के लोगों का जो है सोच है। ठीक है, वो यहाँ के 200-400 लोगों को जानते हैं बस, आपस में वही उनकी दुनिया है, वही उनकी अमेरिका, वही उनका यूए कनाडा वगैरह सब कुछ वही है। उन्हें पता नहीं है बाहर का क्या है, चैट जीपीटी क्या है, क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ किसी को कोई मतलब नहीं। उनके माँ बाप जैसे हैं वैसे ही उनके बच्चे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उनमें से कोई ना कोई निकल के खड़ा हो। अभी मैंने एक लड़के का एडमिशन करवाया रेहान स्कूल में, तो इंशाल्लाह कल वो क्लास अटेंड करेगा। सवेस अली नाम है उसका। आज मैंने उसको लैपटॉप भी ला के दिया है, और जो है उसके अरे सारे वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। जी। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी जो मेरे करने का, बाकी देखिए अल्लाह क्या करता है। जावेद भाई, इंटरव्यू देना शुरू करें ना अपना, ताकि आपको सब सुनना शुरू हो। आपसे ज्यादा से ज्यादा देखें, जो नेटवर्किंग की बात हम बार बार कर रहे हैं ना, अब उसका ही दौर है। जितना ज्यादा आप अपना नेटवर्क वास्ट एंड फास्ट कर सकते हैं ना, उतनी जल्दी आप दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लोगों की और अपनी तकदीर, और जिसे कहते हैं ना कि ये एक गोल चेंज करना चाह रहे हो और एक लाइफ चेंजिंग का काम करना चाह रहे हो, एक चेंजर बनना चाह रहे हैं आप अपने उस एरिया के लिए, तो खुद को कनेक्ट करना शुरू करें। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, अपने नेटवर्क को बेहतर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें। वो लोग नहीं जो आपकी तरह के हैं, बल्कि वो लोग जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, जी जी ताकि जी वो लोग फिर आप में आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से इस गांव से निकल के दुनिया तक पहुंच पाओ। जी। जो मेरे क्लासमेट हैं ठीक, उनसे, या फिर जो जो रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं उनसे, है ना? सबसे सबसे सबसे। सबसे रेहान स्कूल के लोगों से, रेहान स्कूल में मल्टी कंट्री के लोग एडेड हैं, उन सबसे कनेक्ट हूँ, ताकि आपको वो सब लोग हेल्प आउट कर सकें इस सारी चीजों को फिगर आउट करने के मैम लिए, और आप बहुत सारी मोटिवेशन दे सके, बहुत सारी चीजें आपको गाइड कर सके। अच्छा, आप इस तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, तो चीजें काफी आसान हो जाती। ठीक है। मैम जो यहाँ के लोग हैं ना, जो ये यहाँ के लोग हैं, जो मेरी दो दुनिया है। एक तो मेरे कस्टमर हैं जहाँ मेरा बिजनेस है, और एक मेरा ये जहाँ मैं विलेज मेरा गांव है। तो ये दो अलग अलग दुनिया है। अगर मैं इन दोनों में से किसी को भी पकड़ता हूँ ना, तो वो मुझे पकड़ के पीछे खींच लेंगे, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, क्या है ये सब, क्या कर रहा है। हाँ, तो वो कुछ लोग, मैंने कुछ को ऐड किया था, फिर मैंने उनको हटा दिया। मैंने कहा तुम यहीं रहो यार, तुम मुझे परेशान मत करो। फिर सिर्फ मेरे जो जितने भी हैं अभी ना, मेरे अभी जो उनके लिए चीजें बहुत मुश्किल है ना, तो आप उनको अभी ऐड नहीं करो। अभी आप पहले, मैंने मैम जैसे बताया ना, अपने क्लास वालों मुझे कम से से कम कनेक्ट करें, फिर आप मुझे उनसे कनेक्ट करें जो रेहान साहब के फ्रेंड्स हैं ना इंटरनेशनल, उनको कनेक्ट करें। जी मैम, मुझे कम से कम 10 कॉल तो इसलिए आती थी, भाई हाँ वो मैंने तुम्हारा ये देखा था, वीडियो देखी थी, फोटो देखे थे, क्या कर रहे हो, वीडियो गेम बना रहे हो क्या, मतलब इस तरह से ना मुझे ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। तभी मैंने उनको हटा दिया, और फिर सिर्फ मैं उनको अपने उसमें ऐड कर रहा हूँ, जो जो मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ करेंगे आगे चल के, मेरे आस पास के बच्चे। जबरदस्त। तो बस बहुत सारे बाकी लोग मैंने फिर सर्व हटा करेंगे दिया। जावेद भाई, किसी भी चीज में परेशान नहीं होना। अच्छा, आप मुझे कल मैसेज कीजिएगा, एक भाई हैं हमारे कनाडा में, उनको कनेक्ट कराऊंगी, और वो बेसिकली इंडिया के ही हैं, तो आपको काफी चीजें वो गाइड कर सकते हैं, काफी चीजों में हेल्प आउट कर ठीक। सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपके लिए काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी। पर आप इंटरव्यूज लेना और देना शुरू करें तो चीजें और अच्छी होती रहेंगी, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते जाएंगे आपके। बस मैम मैं घर पे आया हुआ था, वो मैंने जो काम करने का था, लड़के का एडमिशन हो गया। उसकी मैंने जो है बस उसकी जो स्कूल की जो फीस है वो बाकी रह गई है, आज नहीं हो पाई, लेकिन वो कल हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं फ्री, मैं चलो, चला जाऊंगा और अपने रेस्टोरेंट। उसके बाद में मैं सैटरडे तक पहुंच जाऊंगा। सैटरडे के बाद में फिर मैं कंटिन्यू रहूंगा क्लास में, और कोई भी मेरा काम जो है मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। जबरदस्त ठीक है। जबरदस्त। जी मिस, मिस मरियम, आपने जो जेमिनाई में लिंक ऐड करने का कहा था, वो लिंक दोबारा बता दें। जेमिनाई में आपने वो लिंक ऐड करना है जो कि आपकी ये जो आपका है ना यूट्यूब लिंक मैं शेयर किया है आपके पास, जो जिसमें हम टेड टॉक देखते हैं। आप उसी लिंक को कॉपी करेंगे और आप जेमिनाई पे उसको ऐड कर देंगे। जब आप जेमिनाई पे ऐड करेंगे और जेमिनाई के कहेंगे शेयर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लिंक,
तो वो आपको पूरी टेड टॉक एक्सप्लेन कर देगा इंग्लिश में, पॉइंट टू पॉइंट भी, और उन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा। अब फिर हमें समझ नहीं आ रही कि इंग्लिश क्या है, अब हमें बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है, तो लास्ट पे जाइए, थ्री डॉट्स पे क्लिक करें और लिसन का ऑप्शन आएगा, उस लिसन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एक मिनट दे, मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे, तो शायद आपके लिए चीजें आसान। ओके, जैसे अभी ये मैंने अपना गूगल खोला, ठीक है, और यहाँ पे मैं इन 9 डॉट्स पे क्लिक करूंगी, और 9 डॉट्स में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जेमिनाई मिल जाएगा। ये 9 डॉट्स, ये 9 डॉट्स आ गए, इन पे मैंने क्लिक किया और ये मुझे जेमिनाई मिला। अब जैसे मैंने जेमिनाई को ओपन किया, इस ईमेल से लॉगिन ही नहीं, एनी हाँ, ये मैंने किया, और इसके बाद मैं यहाँ पे व्हाट्सएप में सारा कौन है, चमिस में पीस है, ठीक है, बैच, क्या बात है सर, आज जल्दी से चलिए। अच्छा अच्छा, ये मैंने कॉपी की, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे, अब मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया यहाँ पे, अब ये देखिएगा, ये अभी आपके साथ पूरी टेड टॉक शेयर कर देगा, जो कि आपने अभी सुनी है इंग्लिश में, उसको पूरी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। द सेम टाइम अगर आपको जेमिनाई नहीं करना, तो परप्लेक्सिटी भी आपके लिए लिंक्स को रीड कर देता है, तो आप परप्लेक्सिटी के साथ भी ये लिंक शेयर करके उसको सेम प्रॉम्प्ट देंगे, तो वो आपको पूरी की पूरी टेड टॉक सी, जैसे पूरी टेड टॉक, और वो टाइम के साथ बताता है कि इतने मिनट में ये बात हुई, इतने मिनट में ये बात हुई, ओरिजिनल टेड टॉक का लिंक ये है, ठीक है, ये भी दे दिया। अब मैं इसको अभी जो है वो सही से पढ़ नहीं पा रही, मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो मैं यहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा, मैंने साउंड शेयर करना भूल गई। अब मैंने जैसे ही लेसन पे क्लिक किया, अब ये पढ़ना शुरू कर देगा। Based on the video, the main points of the talk are the ineffectiveness of traditional incentives. The speaker, Dan Pink, argues that traditional if-then rewards, or carrots and sticks, are ineffective for tasks requiring creative thinking and can even सी, इस तरह से आप इसको पूरी को सुन लेंगे, और आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी बेहतर तरीके से डे टू डे बेस पे अपनी वोकैबुलरी भी इनहेंस करते रहेंगे, और अपनी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर करते रहेंगे। अब हमने ये सारी पढ़ ली, लेकिन हमने अभी भी बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दूंगी, प्लीज ट्रांसलेट इट इन उर्दू to make me understand like a 16 years old child. अच्छा ठीक, ओके, ओहो इसे नहीं की, एक मिनट दीजिए, प्लीज ट्रांसलेट इट इनटू, अच्छा, अब उसने कहा कि मैं, so I'm sorry, but I'm unable to translate the summary into Urdu. I can only provide information about YouTube videos based on the tools I have. अच्छा, हम क्या कह सकते हैं, हम इसी लिंक को दोबारा कह सकते हैं, इसको इसको कॉपी कर लें, और आप इसको यहाँ पे दोबारा शेयर, ये आपके साथ शेयर कर देगा उर्दू में, नहीं ये नहीं करता, सॉरी ये नहीं करता, the other day I did it और ये इसने कर दिया था। अच्छा, अब अगर ये नहीं कर रहा, लेट्स गो फॉर द परप्लेक्सिटी, अगर एक AI टूल आपका ये काम नहीं करता, तो आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी, यस,
परप्लेक्सिटी से ये काम करा लेते हैं, तो परप्लेक्सिटी भी आपके लिए काम कर देगा। ठीक है, तो अगर किसी को टेड टॉक में समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ये मसला आ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस तरह से अपने लिंक्स को कॉपी पेस्ट करके और इनसे मिस मरियम, जी जी मिस मरियम, अगर कोई और दफा आप प्लीज रिपीट कर देंगे थंबनेल बनाना कैनवा पे। जी जी, मैं अभी थंबनेल का भी बताती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मैं सिर्फ ने बताया था मुझे थंबनेल का भी। मैम ये लिंक जो है आप जी शेयर करने वाले चैट में? अच्छा, ऐसा है जावेद भाई, आपने सिर्फ गूगल पे जाके परप्लेक्सिटी लिखना है। मैं परप्लेक्सिटी का लिंक आपके लिए शेयर कर देती हूँ जूम चैट में। लेकिन अभी ये देखिए, मैंने इसको कहा था कि मुझे उर्दू लैंग्वेज में करके देना। ऐसी अब आपको मसला आता है ना कि आप इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे, इसलिए ये देखिए, ये सारी उर्दू में कर दी। अगर आप परप्लेक्सिटी वो को कहते हैं ना किसी इंग्लिश में दो, वो इंग्लिश में दे देगी। अगर आप कहते हैं उर्दू में, वो उर्दू में दे देगी। ठीक है, मैम इस तरह मैम से आप अपनी परप्लेक्स टेटो तरीके से। मैम ये परप्लेक्सिटी जो है मेरे पास ऑलरेडी है, तो बस मुझे वो जो आपने लिंक जो टेड टॉक का लिंक। वो टेटो का लिंक आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद है, मैं वहां से कॉपी की। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक मैम, है, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ, जी जी मैंने उसको व्हाट्सएप से कॉपी करके और मैंने बस जी यहाँ पे ऐड करके प्रॉम्प्ट दिया है, बस और कुछ जी जी, नहीं। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं थंबनेल के बारे में। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले आप कैनवा पे आ जाएंगे और कैनवा में हम canva.com लिखेंगे अपने किसी भी ब्राउजर में, तो कैनवा ओपन कर लेंगे। अब कैनवा ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैंने कुछ थंबनेल अपने बनाए हैं, प्रॉबेबली मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उनको देख लीजिए। बाकी थंबनेल के बारे में मैं आपको फिर गाइडलाइन भी दे देती हूँ, और जैसे मैंने बनाए हैं उनके बारे में भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये भी मैंने कल ही बनाया अपना थंबनेल। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और अभी तक मेरे टाइम नहीं मिल रहा उसको अपलोड करने का, और ये उसका थंबनेल। अब इसमें सिर्फ 2 चीजें थी, बाकी मेरी अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है जो मैंने ऐड की थी। एक तो यहाँ पे पिक्चर लगी हुई थी कोई और एक यहाँ पे उसका टाइटल कोई और था। ठीक है, लिखा इसी तरह था टाइटल, मैंने इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने अपना टाइटल ऐड किया है। यहाँ पे टाइटल वही लिखा हुआ था जो कि उसका अपना था, और यहाँ पे पिक्चर थी। मैंने क्या किया, मैंने ये नीचे 3 चीजें खुद ऐड कर दी कि रिव्यूड बाय किसने किया है, वो मेरी पिक्चर आ गई साथ में, और साथ में मैंने यहाँ पे अपना एपिसोड नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल एक रॉ से डिजाइन करके देती हूँ कि आप कोई भी थंबनेल आप किस तरह से जो है वो डिजाइन करते हैं। एक्सक्यूज मी मिस मरियम, जी मैं सुनना। मैंने मैसेज भी किया है कि मैं लीव कर दूं, क्लास में तबीयत ठीक नहीं है। जी जी प्लीज, हाँ जी आप कर सकते हैं। थैंक यू। और क्या लिखें, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब जैसे हम होम इंटरफेस में आ गए, होम इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पे ना मेन पे ही आपको थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है। शुरू शुरू में अगर आप थंबनेल नहीं बना रहे तो आपको थंबनेल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप 1 से 2 थंबनेल बना लेते हैं ना तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास थंबनेल का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी डायमेंशन आपके पास आ जाएंगी 1280 by 720। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है जो कि यूट्यूब पे भी एप्लीकेबल है। यही थंबनेल आपका फेसबुक पे भी एप्लीकेबल है, और अगर आप लिंक्डइन वाले पे भी लगाना चाह रहे हैं तो लिंक्डइन पे भी एप्लीकेबल है, बस इंस्टाग्राम पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये आपने थंबनेल बनाना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने उसको क्लिक कर दिया, अब आप क्या करें, सबसे पहले इसको क्लिक नहीं करें, आप यहाँ पे लिखें यूट्यूब थंबनेल। तो जो मेन इंटरफेस है ना, यहाँ पे इतने थंबनेल के टेम्पलेट्स आ जाएंगे ना कि आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि आप किस थंबनेल को पिक करें। सी, अब ये आपके पास सारे मैम जितने भी थंबनेल बने हुए हैं डिफरेंट डिजाइन में टेम्पलेट्स में, आप उनको चूज कर सकते हैं।
और आप इनसे मैम अपना ये थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं, आपको जो जी क्योंकि भाई। मैं मरियम जब मैं ये सर्च करती हूँ ना यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा यूट्यूब चैनल, तो मेरे पास वो आता ही नहीं है, यही है, वरना तो मैं इसको सिंपली कर लेती हूँ, पता नहीं क्या वजह है इसकी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। जी जावेद भाई आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका कैनवा शेयर करा देती हूँ। जी जावेद भाई। जी मैम, मैं इसमें जैसे सर्च बार में लिखना होगा कि यूट्यूब थंबनेल, है ना? हाँ जी, वो आपने क्या करना है, कैनवा ओपन किया, कैनवा के होम में जो एक बड़ी सी स्ट्रिप आएगी ना, पट्टी सी आएगी जी व्हाइट कलर की, उसके अंदर आपने जी लिखना है यूट्यूब थंब। वो आपने लिख दिया, एंटर जी प्रेस करेंगे, आपके पास बहुत सारे थंबनेल ओपन हो जाएंगे। फिर उनमें से जी जो आपको लगेगा कि ये वाला थंबनेल मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आपने फिर उसमें कुछ चीजें एडिट करनी होती हैं। ठीक है, अभी मैं सीरम शेयर करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप एडिट करके अपना थंबनेल बनाना है। मतलब टाइटल आपने अपना रखना है, जैसे आज की टाइटल हमने देखी ना, द पजल्स ऑफ मोटिवेशन, तो जो उसमें लिखा होगा हमने उसको चेंज करके द पजल्स ऑफ मोटिवेशन पे कर देना। फिर उसमें साथ में हमने पिक्चर लगानी है डैन पिंक की। ठीक है, वो पिक्चर जी हटा देंगे और उसकी जगह पिक्चर किसकी आएगी, डैन पिंक की, जो कि हमारा टेड स्पीकर था। अब टेड स्पीकर की पिक्चर बहुत बड़ी लगनी चाहिए। आप अपनी पिक्चर लगाएंगे उसकी कंपैरेटिवली छोटी। ठीक है, आपकी पिक्चर जो है वो छोटा होना चाहिए, और जो आपका टेड स्पीकर का पिक्चर है वो बहुत विजिबल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए आपका पिक्चर। मतलब अब लेट्स सपोज क्या करें, उसका साइज मेरी पाम जितना है, ये हथेली जितना साइज है आपकी टच स्पीकर की पिक्चर का, तो आपकी पिक्चर का साइज ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक छोटा सा ठीक स्क्वायर, बहुत बड़ा नहीं। अगर आप अपनी पिक्चर को जितना बड़ा रखेंगे ना, तो फिर वो टच स्पीकर की पिक्चर का कोई फायदा नहीं रहेगा। वो उसके ठीक कंपेरेबल लगाते हैं हमेशा जब दो आपने पिक्चर ऐड करनी हो। और अगर आप सिर्फ उनका ऐड करना चाह रहे हैं, अपनी नहीं पिक्चर ऐड करते, तो सिर्फ फिर वो एक ही पिक्चर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। फिर इसका साइज कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जी मैं सरम, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। जी हाँ जी, स्क्रीन अब शेयर आप हो यहाँ रही पे है। लिखिए, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अब आप ये देखिए, आपने ऊपर क्लिक ही ना वो नहीं किया हुआ। क्लिक जब भी करना है टेम्पलेट को करके टेम्पलेट सर्च करेंगे ना, आप डिजाइन पे क्लिक करके तो सर्च करेंगे तो फिर तो आपने नहीं मिलेगा ना। मिश्रम वापस आइए। जी, पहले ऊपर जो मैंने रेड कलर का सर्कल ड्रॉ किया ना, उस पर क्लिक कर ले। जी, आप नीचे लिखे यूट्यूब थंबनेल सर्च में। आप एंटर प्रेस कर दे। आप नीचे स्क्रॉल करना शुरू करें। ये सेम थंबनेल ही है जो हमारे पास शो हो रहे थे। ठीक ठीक है, है, थैंक यू। आप ऊपर से जब क्लिक कर रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बाकी रेस्ट इज गोइंग गुड। अब आप यहाँ से कोई भी थंबनेल का डिजाइन पिक करके और आप उसको अपना डिजाइन बना लो। ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रीन ओके स्टॉप जी। करती हूँ। जी मेरे, आपका कोई सवाल है? हाँ भाई, अहमद भाई थक गया, जल्दी करो फिर क्लास एंड करें। वो सोच लेटे हैं अहमद। मैम बनाया था ना, वो जूम हो गया था फेसबुक पे जाके, जैसे आपका फेसबुक जूम हो गया था? जैसे प्रॉपर्ली क्रॉप हो गया था, और उस थंबनेल का सिर्फ मिडल नज़र आ रहा था, मिड साइड नज़र आ रही अच्छा, जब आप फेसबुक पे अप्लाई करते हैं ना थंबनेल को, तो फेसबुक पे अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि आप अपनी डायमेंशन चेक करें, आपने किस डायमेंशन में इसको बनाया है। क्या वो वही डायमेंशन थी जो भी मैंने आपको बताई है कि 1280 बाई 720 पिक्सल, ये थंबनेल का स्टैंडर्ड साइज है। जैसे अभी हमने सर्च किया ना कैनवा के ऊपर जाके, हम सर्च बार पे लिखते हैं यूट्यूब थंबनेल, वहां से हमें थंबनेल मिलता है, फिर हम उसको डिजाइन कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर तो उस तरह से किया है फिर तो वो नहीं हो। और अगर आपने कोई और उसके जो डायमेंशन है वो डिफरेंट रखती है, उसका जो लेआउट है वो डिफरेंट रखा है, फिर पे ये प्रॉब्लम आया। अब आप देखो आपने क्या किया। थी। ओके मैम। ठीक है, उसको चेक कर लो और फिर मुझे बता।
वैसे थंबनेल चेंज हो सकता है, अगर आपने YouTube पे जाके थंबनेल अपलोड किया है और Facebook पे जाके अपलोड किया है तो वो चेंज हो सकता है। अगर आपने पहले ऐड कर दिया तो फिर वो डिफरेंट चीज है, फिर वो आपको वीडियो से करना पड़ेगा जिस वीडियो से पहले आपने उसको ऐड किया। मैंने अभी सिर्फ फेसबुक पे ही ऐड किया है, तो आप मुझे स्क्रीन शेयर कर सकती हैं ताकि मैं देख लूं क्या मसला है उसका। वो अब मैंने वो जो सबसे पहली रिव्यू वीडियो बनाई थी ना, उसके ऊपर थंबनेल लगाया था, तो वो जब नहीं फिट हुआ था काफ़ी देर ट्राई करने के बाद, तो फिर मैंने उसे रिमूव कर दिया था। हाँ चलो ठीक, अब आज ट्राई करना थंबनेल को और फिर कल मैंने बताना। आज के जो आप वीडियो बनाओगे उस पर थंबनेल लगाना और फिर कल हमें दिखाना कि क्या मसला, ठीक है? चलें जी, बहुत शुक्रिया। Any participants, any question regarding today's task in the class? आज की जो हमने क्लास की इसके बारे में कोई सवाल कोई जवाब? अच्छा किसी का नहीं है तो लास्टली हमजा प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दें। Hello Hamza, please unmute your mic. Yes, can you please introduce yourself? Ji miss, I'm Hamza and this is my first, maybe my second time, maybe second or third time joining this Rehan online class. Okay, from which country or city you are? I'm in Pakistan, in Karachi. Right. Karachi. Okay, and how old are you and where did you get this link? 17 and I'm sorry, what? Where did you get this link? The sir J Prakash, he gave me the link. Okay, he gave you the link. Now you can you took 2 to 3 classes. Okay, now you have to contact to him after the class, and then you have to share your reflection to him, and then he'll guide you which I think class I link already you have to shared join. my introduction to him. Okay, you already shared now. So please connect with him one more time and he'll guide you which class link you need to join, because we are almost 50% to 60% tasks we have completed. So it's a waste of time. You will stay over here. We have another batch that we started just yesterday. You can you go repeat that? and I join that. don't understand what you're saying. Can you repeat it again, please? I'm saying to you, we already completed 60% task of this bootcamp. Okay, you need to join another bootcamp that just started yesterday, and that's really helpful for you. Okay. Okay, miss. Okay. So wish you good luck and join the other class. Okay. Bye tomorrow. Thank you, Hamza. Okay, participants, thank you so very much for joining today. We'll see you tomorrow at 9 p.m. sharp according to Pakistan Center Time. Thank you so very much. Take good care of yourself and stay blessed. Allah Hafiz.